Good morning, students. This is your biology class. In our previous class, I have completed the chapter 8, that was human health and disease. Today, we will start the chapter 10, that is microbes in human welfare. Okay, so microbes in human welfare. In the last chapter, we have discussed that microbes are very harmful for our health and body, but there are some microbes also that are useful in our life, so we will discuss about that in this chapter. So the first heading in which in this chapter is microbe in household products. In our household products, in our house, in our kitchen, how the microbes are used or useful. So first topic is this. Second heading is microbes in industrial product. In industry, how the microbes are useful, how they are economically important also, that is discussed in this topic. Third point is microbes in sewage treatment. Sewage treatment, whatever the waste products or the waste water is thrown out from the house or the other localities and cities, that are treated first before the submission of the that water in the river or water body. So fourth point is microbes in production of biogas. Biogas is actually the methane gas. So the methane gas is also produced with the help of microbes, and how which microbe are used in the production of the biogas, that will discuss in that. So next is microbes as bio control agent, how the microbes control the other pest which is also living, so that will be mentioned in this topic. Next and the last one is the microbes as biofertilizer, how the microbes are useful in increasing the fertility of our soil, that is mentioned there. So first we will go through the introduction about this chapter. Beside macroscopic plant and animal, microbes are major components of the biological system on this earth. बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा अर्थ पे बनता है वो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों तरीके के एनिमल से या ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है. हम लोगों ने स्टडी करी थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, माइक्रोब से लेके जो मैक्रोस्कोपिक है, मतलब जो आँखों से नहीं दिखाई देते, और जितने बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो सब, उसके बारे में हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था. तो जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, प्रियॉन्स आर put in the kingdom Monera. So the five kingdom classification which was given by the Whitaker. In the Whitaker classification, Monera is the first kingdom in which microbes or bacteria are placed. Microbes are present everywhere: soil, water, air, inside our body, and that of other animal and plant. So microbes are cosmopolitan. Cosmopolitan means everywhere. The animal or plant which live everywhere, then the word is used cosmopolitan. So in air, in water, in soil, everywhere is the bacteria or microbes are present. They are present even as the site where no other life form can exist. So if there is a place where life cannot exist for other animals, there also microbes can grow. So whereas the temperature may be high or the deep in the soil, layer of snow several meter thick and highly acidic environment, they can also survive. Microbes are diverse, means there are many types of microbes including protozoans, fungus, bacteria, and plant virus, viroids, and prions. These are the variation of the microbes. They are proteinaceous infectious agents. Some of the microbes are given in the figure. Microbe like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies that can be seen with the naked eye. Such cultures are useful in the studies of the microorganisms. So bacteria or the fungus can be grown in the lab also, and then it is called a bacterial colony or fungal colony. Some diagrams of the bacteria and virus are given in this page. You can see that bacteria, which are many different type of shape, that are rod shaped, spherical, comma shaped, and there is a flagellum present also in the bacteria. Virus are always harmful, but there are many, there are not many, there are one or two viruses that are useful for us, otherwise all the viruses are harmful for us. So these are the colonies of the fungus and bacteria. So in chapter 8 we have discussed about the disease which were caused by the microbes, for example helminth disease and protozoan disease, bacterial disease, and viral disease. So in this chapter we will study about the useful or benefits from the microbes, and we use
there is use of that organism or microbe in our life. So first heading is the microbe in household product. How the microbe are useful in our house, in our kitchen and in our daily life. The first example is the converting of milk into the curd. So there is a bacteria named lactobacillus which convert the milk into the curd. ठीक है. So this is the name of the bacteria which is lactobacillus and you should remember this. So if the milk is there is a portion of the curd and the some curd is added in the milk that contain lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria are present in the curd. So when curd is put in the milk, then there is a microbes which is lactobacillus bacteria present in that curd, and that is called inoculum. So the portion, a little portion which is added into the milk, that is called inoculum. Okay, so first example is the household product, how microbes are useful, that is converting of milk into curd and the lactobacillus bacteria work on it. Next is converting of the making of idli and dosa. So we make a dough for that, and in dough we mix curd. So the curd which in which the microbes are present, that is बैक्टीरिया एंड विच उससे क्या होता है मीन्स डव जो है वो फूल जाता है. डव फूलता क्यों है? क्योंकि उसमें CO2 प्रेजेंट होती है. तो डोसा और इडली बनाने में भी हम माइक्रोब का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज ब्रेड बनाने में, ब्रेड इंडस्ट्री में. तो ब्रेड इंडस्ट्री में या ब्रेड बनाने में, ब्रेड को बेक करने में हम यूज़ करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का नाम है जो कि फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, ब्रेड को बेक करने का काम करता है. एक टॉडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि कुछ साउदर्न इंडिया में बनाया जाता है फर्मेंटेशन के थ्रू. पाम ट्री जो होता है उसका सैप कलेक्ट करा जाता है, उसको फर्मेंट करा जाता है, देन टॉडी जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है उसको बनाया जाता है. देन नेक्स्ट है चीज़, पनीर बनाने में. तो डिफरेंट टाइप का चीज़ जो है वो भी माइक्रोब की हेल्प से बनता है. तो स्विस चीज़, द वैरायटी ऑफ स्विस चीज़ दैट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी. Propionibacterium shermani help in for the production of Swiss cheese. And Roquefort cheese are ripened by the growing a specific fungi on them. Roquefort cheese is obtained from fungi. So these are the main products which are obtained from the microbe. First is curd, second is cheese, third is idli and dosa, fourth is bread. Next is microbe in industrial product. How the microbes are useful in industry. So first of all we will study about the beverages. Beverages are actually fermented beverages means alcohol. Alcohol in Hindi it is called शराब. ठीक है. तो माइक्रोब्स जो है वो उससे हम बेवरेजेस या अल्कोहल को भी मतलब गेन कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक्स भी बनाई जा सकती हैं. जो दवाइयाँ हैं वो भी माइक्रोब की हेल्प से बनती हैं. तो जो शराब का प्रोडक्शन होता है वो बहुत बड़े बड़े वेसल्स में होता है जिनको फर्मेंटर्स कहते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो देयर आर मैनी फर्मेंटर्स और बिग टैंक्स, दैट इज कॉल्ड फर्मेंटर्स. तो फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या है? माइक्रोस्कोप स्पेशली ईस्ट हैव बीन यूज फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, रम एंड ब्रांडी. देयर इज द वेरिएशन ऑफ द बेवरेजेस एंड द नेम आर दीज: वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम. For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae is used for bread making and commonly called brewer's yeast. Means जो yeast beverages बनाने में किया जाता है या अल्कोहल बनाने में किया जाता है उनको ब्रेवर ईस्ट कहा जाता है. Is used for the fermenting malted cereals and fruit juice to produce ethanol. और जो शराब बनाई जाती है, जो अल्कोहल बनाया जाता है वो एक्चुअल में सीरियल्स मतलब अनाज से बना सकते हैं, या फिर कुछ फ्रूट जूस जैसे कि ग्रेप्स हो गया या एप्पल हो गया, उससे भी बेवरेज बनाई जाती है. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल ड्रिंकर ऑप्टेंड. मतलब क्या डिपेंड करता है कि वो शराब या वो अल्कोहल किस से बनाई जा रही है, किस सीरियल से बनाई जा रही है. ठीक है. और किस तरीके से उसका डिस्टिलेशन किया जा रहा है, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, पानी मिलाया जा रहा है या नहीं मिलाया जा रहा है, उसके हिसाब से दो तरीके की ड्रिंक होती हैं. वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, वेयर एज विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ. तो वाइन और बियर जो है वो बिना डिस्टिलेशन के, बिना पानी के मतलब बनाई जाती है. विस्की, ब्रांडी और रम जो है वो डिस्टिलेशन से बनाई जाती है. द फोटोग्राफ ऑफ द फर्मेंटेड प्लांट इज शोन इन द फिगर.
Next is antibiotics. Antibiotics by the microbes are regarded as one of the most significant discovery of the 20th century and have greatly contributed toward the welfare of the human society. अब जो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। तो जो पेनिसिलिन है वो एक्चुअली में माइक्रोब से ही मिली है, ठीक है, फंगस से मिली है। तो फंगस क्या है, माइक्रोब है, तो फंगस हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकता है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब होता है लाइफ। तो हमारी लाइफ के अगेंस्ट ये काम नहीं करती है, लेकिन जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया है, जो बीमारी कॉज कर रहा है, उसके अगेंस्ट ये काम करती है, इसीलिए इसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। Whereas with reference to the human beings there are pro life and not against, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए ये प्रो लाइफ है, अगेंस्ट नहीं है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सबस्टेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब। एंटीबायोटिक्स क्या है, केमिकल सबस्टेंस हैं जो कि कुछ माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं एंड किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, मतलब मिल भी माइक्रोब से रही है और काम भी माइक्रोब पे ही कर रही है, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो ये मीन्स प्रोडक्शन करते हैं उस दवाई का या एंटीबायोटिक का, और वो उस एंटीबायोटिक का यूज़ करा जाता है किसी दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए। यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। डू यू नो द पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी, ठीक है। ये एक बाई चांस डिस्कवरी थी। वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे वो एक्चुअल में किसी और पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, लेकिन सडनली उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिससे कि उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी। वंस ऑब्जर्व्ड ए मोल्ड ग्रोइंग इन वन ऑफ हिज अनवॉस्ड कल्चर प्लेट्स अराउंड विच स्टेफाइलोकॉकी कुड नॉट ग्रो। उन्होंने क्या करा, जो जिस पे वो काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकॉकस पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया पे, और एक बार जब भी वो काम कर रहे होंगे तो उन्होंने अपनी जो पेट्री डिश है जिसमें वो ग्रो करा रहे थे उस बैक्टीरिया को, वो अनवॉस्ड ऐसी छोड़ दी। फिर नेक्स्ट डे आके देखा तो उसमें कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाया, कौन, बैक्टीरिया, लेकिन फंगस ग्रो कर गया। उस फंगस का नाम पेनिसिलिन था। He found out that it was due to a chemical produced by the mold and the named it penicillin after the mold Penicillium notatum। तो पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड है, मतलब फंगस है, उससे बनी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो वो क्या करता है, वो स्टेफाइलोकॉकस को ग्रो नहीं होने देता, मतलब उसको प्रिवेंट करता है। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मच लेटर बाय अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। बाद में क्या हुआ, अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने इसको और ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म में इस्टेब्लिश किया। द एंटीबायोटिक आर एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर वाउंडेड इन वर्ल्ड वार सेकेंड। और मोस्टली जब इसका यूज़ किया गया वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वर्ल्ड वार सेकेंड जब हुआ था तो अमेरिकन सोल्जर को इससे एंटीबायोटिक से ट्रीट कराया गया, तब इनकी नेम ऑफ फेम, मतलब तीनों साइंटिस्ट की, बहुत बढ़ गई और इनको नोबल पुरस्कार दिया गया, नोबल प्राइज़ दिया गया 1945 में। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वाज अवॉर्डेड बाय द नोबल प्राइज़ इन 1945। तो फर्स्ट डिस्कवरी जो थी एंटीबायोटिक्स जो थी पेनिसिलिन थी, और वो जो डिस्कवरी थी बाई चांस थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे वो स्टेफाइलोकॉकस पे काम कर रहे थे, लेकिन सडनली उन्होंने ये देखा कि ऐसे कुछ एरियाज़ हैं उस पेट्री डिश में जो कि पेनिसिलियम, वहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो कर गया, और पेनिसिलियम नोटेटम कुछ ऐसा सबस्टेंस रिलीज़ कर रहा है जहाँ जिससे कि स्टेफाइलोकॉकस ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी करी। एंटीबायोटिक्स हमारे लिए यूज़फुल है, उसका कमर्शियली यूज़ करा जाता है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल करा जाता है, पैसा कमाया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स का यूज़ हमने देखा एक अच्छे वे में। तो दीज आर द एंटीबायोटिक्स और माइक्रोब्स आर ह्यूमन वेलफेयर। So after penicillin, other antibiotics were also purified from other microbes. Can you name some other antibiotics? Antibiotics have greatly improved our capacity to treat deadly disease जैसे प्लेग, बूफिंग कप, काली खांसी, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, which used to kill millions all over the globe. Today we cannot imagine a world without antibiotic. हम क्या करते हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना एंटीबायोटिक के ये वर्ड, क्योंकि ज़्यादातर जो भी बीमारियां हैं वो उनका जो रेमेडी है या फिर जो भी उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ही लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। इन अवर नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अबाउट द केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, कि हमें माइक्रोब से इस तरह के कुछ केमिकल, कुछ एंजाइम्स भी मिलते हैं, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी मिलते हैं। सो दिस विल कम अंडर this topic, microbe in industrial product. I have covered the microbes in household product and then microbe in industrial products. Okay, thank you.